This is not ordinary sound wave. This is not some kind of a song or some kind of a movie jingle or something like that. It is transcendental sound wave. Transcendental का मतलब पता है? Anybody knows what is the meaning of transcendental? Transcendental. Religious. धार्मिक. No. Body. Transcendental. Soul. In the book of Srila Prabhupada, in the Bhagavad Gita or other books, soul से related. you will encounter this word so often. Transcendental. What is the meaning of transcendental? पढ़ा है आपने अब तक ये शब्द तो पढ़ लिया होगा ना? पढ़ा रहा है लेकिन याद नहीं आ रहा। क्या बात है? अब गीता नहीं पढ़ रहे आप? पहले पेज पर ही मिल जाएगा आपको transcendental. सोल टू गॉड का एक रिलेशन शायद ये है। Okay, somewhat near to it. Yes. Yes, Mataji, would you like to shed some light on what is transcendental? Transcendental is just a spiritual Yes. world, taking us to the spiritual world. Yes, which is beyond matter. So this sound vibration transcendent. It is not ordinary sound vibration like Coca-Cola, Pepsi, our name, chair, camera, laptop. These are ordinary sound vibration, mundane sound vibration. Even our own name, like my name Ras, my name is spiritual. This name is spiritual. Suppose if somebody's name is Tarun Malhotra, so he cannot even chant one round of his own name. He will get bored. His mouth will start slacking. So unless we use these facilities that has been given to us in the service of Krishna, we are not utilizing it properly. Like government, they give those who are performing government duties. Government provides them some facilities, like they, you must be knowing IS officer or president of a state. So, like Mr. Macron, he must be having his own car, his own plane, his own security, his own very big palace, very big mansion, right? So, why government has provided him that facility? For what use? So that he can do his job properly by using this facility. And what if he start, going out with his girlfriend in his Ferrari, or start going for the world tour in his plane? Is it a good thing? No, it is not. So similarly, we have been given this facility to hear about God, to see God and His devotees, to take darshan of the Lord, to smell the flower that are offered to Krishna, to taste the prasadam that is offered to Krishna. And if we are not using it, then we are doing misuse of it. Okay, so we'll sing this Vaishnav song and then we'll proceed further for today's class. Bhajahu re mana Shri Nanda Nandana Abhaya Charanara Vindare. Good pedal. Song दिखाओ ऊपर आप यही बैठो जहाँ आप कंफर्टेबल निकलेगा कोई हाँ भले हो रहे हैं बड़ा कोई okay. So those who are from Hindi background or those who are accustomed to this Vaishnav song, you will understand the meaning of it. इतना कोई मुश्किल नहीं है. Bhajahu re mana Shri Nanda Nandana Abhaya Charanara Vindare. Bhajahu re mana Shri Nanda Nandana Abhaya Charanara Vindare. Shri Nanda Nandana Abhaya Charanara Vindare. Durlabha Manava Janama Satsange. Durlabha Manava Janama Satsange. Durlabha
विफल से विनो कृपा दूर जाना विफल से विनो कृपा दूर जाना चपल
Prabhu ji. Okay, so what is the topic of the day? Power of association. Power of association. So before we start, we'll have Bhagavad Gita with us in our phones, in our hands. Very nice. On our laptop screens also हमारे पास भगवद गीता है. हम खोलते हैं भगवद गीता. मंगलाचरण खोलेंगे. मंगलाचरण होता है इंट्रोडक्शन. जो मंत्रास थे ओम ज्ञान का मेरे अंदर सर्वे वाले. हाँ जी. So who is comfortable to read this shloka? अगर आपको लीड करने को बोला जाए तो आप में से कौन कर लेगा? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य. इंट्रोडक्शन नहीं आना चाहिए, एकदम पहले देखिए. ये है मतलब जी आप एक काम करो, गूगल पे लिखो वेदाबेस बीजी इंट्रोडक्शन. आई टोल्ड यू पीडीएफ ना घुमाते ही रह जाओगे आप ऊपर नीचे. ओके, समय निकाल लिया. रेडी. खुली बात है. Vedabees BG पहला देखो. Okay, so we'll recite these mantras. Om Ajnanatimirandhasya ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकां. ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्दे अहं श्रीगुरो वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलां श्रीयुतपदकमलां श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवां सहगणो रघुनाथान्वितं तं सजीवम्. साद्वैतं सावधूतं 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 परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावितांश्च सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. Arjun, you lead from now onwards. Hey Krishna Karuna Sindhu. Take one by one line. I'll be back in a minute. हे कृष्णा करुणा सिंधु हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते दीनबंधो जगत्पते गोपीसा गोपिका कान्ते गोपेश गोपिका कान्तो राधा कान्ते नमोस्तुते राधा कान्ते नमोस्तुते. तप्त कंचन गौरांगी तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये. हे कृष्णा करुणा सिंधु हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते दीनबंधो जगत्पते गोपेश
गोपिसा गोपिका कान्ते गोपेश गोपिका कान्ते राधा कान्ते नमोस्तुते राधा कान्ते नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगी तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये। आगे भी श्लोक आ रहा है। वंशकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले कृष्णाय भूतले गो श्रीमते भक्ति वेदांता श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। सो टुडेज टॉपिक ऑफ पावर ऑफ एसोसिएशन, उसमें हमने थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी डाला था कि व्हाई इट इज नेसेसरी टू गो टू टेंपल। मंदिर जाने की जरूरत क्या है? ये सीधा सा सवाल है। आपके घर में भगवान की फोटो होगी, आपके घर में यू मस्ट हैव deity of Krishna at your place, you must have a photo of Krishna. Is that photo same with Krishna or not? You believe? Now believe it. वो कृष्ण वहाँ पर है. You have Krishna in your home. So why there is a need to go to temple? घर में बैठो पूजा पाठ करो. यहाँ क्या करना? Why there is a need to go to temple? You know your friends and relatives might be saying this. आपके घर वाले आपके रिश्तेदार बोलते हैं मंदिर जाने की क्या जरूरत है? घर पे पूजा पाठ करो, isn't it? मंदिर वालों के पागल हो जाते हो। मैं जुड़ा था तो मेरी मम्मी, my mother used to say that if your temple people will say, you will do anything, and when we ask you to do something, you don't even move an inch. हिंदी में प्रॉपरली ऐसे कि मंदिर वाले बोलेंगे तो टावर से चढ़ के भी छलांग मार देगा, है ना। हम बोलेंगे पानी का गिलास भी रख दे तो वो भी नहीं करता है। हो सकता है शायद आपको भी ये सुनना पड़ता होगा जो घर में रहते हैं, या अपने रिलेटिव से आपको ऐसा सुनने को मिल सकता है। सो माय क्वेश्चन इज टू यू इज व्हाई देयर इज नेसेसरी, व्हाई डू वी नीड अ टेंपल? क्यों जाना है मंदिर? ऐसा क्या है मंदिर में जो वो घर पे नहीं करते हैं? In association with devotees. Association of the devotee, your family member, they can become devotees, isn't it? Make your family member devotee, then you have association of devotees at your home also. घर वालों को भक्त बना दीजिए, है ना। क्या बोलते हैं, फ्लैटमेट्स को भक्त बना दीजिए, है ना। एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज घर पे मिल जाएगा। प्रसाद घर पे बना लीजिए, आप घर पे भोग डाले वहाँ भी प्रसाद हो जाएगा। मंदिर वाली बात नहीं होगी। मंदिर वाला मंदिर अच्छा है, मंदिर में कल वाली सब्जी खिला देते हैं। नहीं, बात वो प्रसाद के लिए नहीं है ना, मिलना और भगवान को दर्शन करना। यस, घर में है भगवान तो है, भगवान थोड़ा की जगह है ना। घर में है, हम पूजा पाठ मंदिर की जैसे थोड़ी करते हो, पूरे सिस्टम विधि विधान सब आरती है वो करके तो we do need temple. First of all, I'm just trying to invoke, थोड़ा आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ाने का प्रयास कर रहा था मैं ऐसे बोलकर। But yes, we do need temple.
Yes, Krishna is there in our home also. Krishna is there in our, we may have, हमारे जो घर वाले हैं वो भी भक्त हैं, but there is a problem with our home also, that we get comfortable also at our home, है ना. हम देखो हमारे घर में ना एक in our home there must be one sofa, one bed, जहाँ पे जैसे मैं लेटता हूँ लेटती होंगी ना, अपने आप मेरा मोबाइल मेरे हाथ में आएगा. By nature वो चीज, that thing has been installed in me, that has become my habit. The moment I go to reach my home, I just lay down on that sofa or the chair or the bed, and I get comfortable. If like at our home, we can change timings. Okay, today we are not feeling like cooking, so maybe we can cook little later. We can give to Krishna. We have to do offering. That's okay. हमें भोग लगाना है, पर हम कब लगा लेंगे? 1 बजे के बाद 2 बजे लगा लेंगे. आज आरती नहीं करी तो क्या हो गया, चल जाता है. But in temple, all these are bound. You have to do. टेम्पल में 4:30 बोलो 4:30, 4 4:30 का 4:31 भी नहीं होता है. तो 4:30 खोलना ही खोलना. 4 बजे बाहर खड़े हो लोग, अंदर आके देख ले क्या कर रहे हो, खोलो जल्दी. So why do we need a temple? Because this temple is a training ground for devotional service. It provides us all the facilities that is required to progress in devotional service. हमें वो सारी फैसिलिटी, वो सारी सुविधाएं हमें प्रदान करता है मंदिर, जो हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है. जैसे कि आप देखिए, आप क्रिकेट किट खरीद सकते हैं, या और फुटबॉल किट खरीद सकते हैं, फुटबॉल खरीद सकते हैं, अपने घर पे गोल पोस्ट भी बना सकते हैं. यू कैन हैव ऑल दोज फैसिलिटीज इन योर होम ऑल्सो, है ना. आजकल तो वो वाली मशीन भी आती है, बॉल डाले, मशीन में बॉल डालो तो बॉल भी डाल देती है, या फिर रोबोट भी आ गया आजकल. रोबोट भी आ गया, गोल पोस्ट पर रोबोट खड़ा होता है ना. सो these facilities are there in home, but still players need to practice in ground. They have to come to ground. They have to compete with other players so that they can progress. Here we are not competing with each other, but we need each one of us. This example I have gave a certain number of times, but it's repetition necessary to drive point home. मैं पहले ये बात बोल चुका हूँ, पर दोबारा बोलना जरूरी है, कि बार बार सुनते हैं तो वो चीज़ पक्की हो जाती है. मान लीजिए आप क्लास में सिर्फ अकेले आते हैं, मैं अकेला बोलने वाला हूँ और कोई नहीं है इस मंदिर में, आप भी अकेले क्लास में बैठे हैं. कितना टाइम आपको, और प्रसाद में भी सिर्फ खिचड़ी है, सुबह दोपहर शाम खिचड़ी, उसके साथ अचार भी देते ही कुछ नहीं है. हाउ मच यू विल फील एनकरेज टू गो टू टेम्पल? एक टाइम के बाद we will start feeling boring. Variety is the mother of enjoyment. So that's why we need, when we go to temple, we meet so many devotees. We see them. अभी जैसे जब हम कोचिंग लेने जाते हैं, we see other players, how they are doing, what they are doing nice, what they are not doing nice. क्या वो अच्छा कर रहे हैं, क्या वो अच्छा नहीं. हम उनसे सीखते हैं बहुत कुछ, है कि नहीं? More things are taught rather than taught. बहुत सारी चीजें हम दूसरों को देखकर सीखते हैं, जबकि हमें कोई बताता है. जैसा मंदिर आए होगे, when you start coming to temple. At your home you might be eating through both of the hands. दोनों हाथ से शायद खाना खाते होगे, हाथ से रोटी तोड़ते होगे, कुछ करते होगे. मंदिर में आगे आप देखते होगे सब हाथ सीधे हाथ से खाना खा रहे हैं, बाएं हाथ यूज ही नहीं करते हैं. लेकिन या चम्मच यूज नहीं कर रहे, they are not using spoon, they are just eating with the hand. So हमें by itself we start feeling awkward. बैठ के भी खा रहे हैं, बैठ के भी खाते हैं, नहीं तो खड़े भी खाते हैं. So मतलब हम भी क्या करते हैं कि अब सब लोग कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, बैठ के ही खाना पड़ेगा, है ना. सभी लोग ऐसे they are eating with their hands. So मैं अलग से खाऊंगा तो वो क्या कहेंगे, तू ज्यादा अनोखा है, जो तू चम्मच से खा रहा है, तू हाथ से खा रहे. तो हम भी अपने आप ही क्या करने लग जाते हैं, चीजें करने लगे, चीजें करना कोशिश करते हैं. The way people are paying their obeisances, we also start paying obeisances like that. शुरू में हमें पता नहीं होता कि ये ऐसे प्रणाम क्यों कर रहे हैं. भगवान तो इस तरह ये कहा दीवार को प्रणाम कर. मैं एग्जांपल हूँ, हमें पता ही नहीं था, प्रभु जी ने बताया कि ऐसे दंडवत भी करना होता है, हमें किसी ने बताया ही नहीं. So yes, so temple provides us all those opportunities,
Actually, temple is last class में ही बोला था, temple is not just for taking दर्शन, सिर्फ दर्शन करने आने के लिए मंदिर में, है ना, अपनी विश लिस्ट देने के लिए भगवान को, या फिर प्रसाद पाने के, प्रसाद पाना तो बहुत ट्रांसेंडेंटल चीज है, पानी चाहिए, जब भी आप मंदिर में प्रसाद जरूर पाना चाहिए। ये भी आप वो कर सकते हैं, कब प्रसाद मिलेगा। मतलब लिटरली मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्लास, मतलब हाफ ऑफ द पोटेंसी ऑफ द क्लास इज इन प्रसादम। अगर आप मंदिर आने में लेट भी हो रहे हैं, if you are getting late while coming to temple, still come, even if you reach by the time of prasadam. Prasadam has so much potency. एक इस्कॉन में एक महाराज है, धीर शान महाराज, वो लंदन में उन्होंने ज्वाइन किया था। So जब movement शुरू, when movement was has started in 1960s, so there was so many hippies all over the world. You know hippies? You heard of hippies? हिप्पीज वो लोग होते हैं जो ऐसे ड्रग्स वगैरह लेते हैं, दोज हु आर इनटू ड्रग्स एंड ये लोग बहुत नशे करते हैं, वो कोई काम वगैरह नहीं करते हैं, दे जस्ट लिव ऑन गवर्नमेंट सपोर्ट। यू कैन सी सम हिप्पीज दीस डेज आल्सो, इधर भी बहुत। सो वो भी एक हिप्पी थे, एंड समहाउ और द अदर उनको पता लगा कि कोई हरे कृष्णा मंदिर है, देयर इज वन हरे कृष्णा टेंपल हु सर्व्स प्रसादम फ्री ऑफ कॉस्ट, हु सर्व्स फूड, उनको प्रसाद फूड खाना खिलाते हैं वो तीनों टाइम। और पोपा जी ने बोला था कि भाई कोई भी मंदिर आए, whoever comes to temple, he must be given, उसको आप मना नहीं कर सकते, जो आपके पास है आपको उसको उसके साथ शेयर करना है। So he became, he made a rule, उन्होंने रूल बनाया अपनी लाइफ में। सुबह 8 बजे जब प्रसाद का टाइम होता था, दोपहर 2 बजे जब भी प्रसाद का टाइम होता था, तीनों टाइम आते थे, डॉट टाइम पे पहुंचते थे, जैसे ही प्रसाद पाया चले गए वापस, प्रसाद पाया वापस चले गए। Devotees, they try to convince him, yeah, why don't you chant Hare Krishna? No, maybe you can chant one round. You're coming daily. You're doing very nice. Why don't you chant Hare Krishna? No, I am busy. आते थे प्रसाद पाते चले गए। 6 months, 6 महीने, he did only this. तीनों टाइम फोकस हो गया था बिल्कुल भी, he was completely focused on his task. मंदिर आते प्रसाद पाते चले जाते थे लंदन में। So 6 महीने बाद क्या हुआ, एक बार वो आपने लंदन में डबल डेकर बस चलती लाल कलर की, आप गए होंगे तो वो उस बस में ट्रैवल कर रहे थे और एकदम से उनके मन में हरे कृष्ण महामंत्र चलना शुरू हो जाता है। ऑल ऑफ अ सडन हरे कृष्ण महामंत्र स्टार्ट प्लेइंग इन हिज माइंड, एंड ही बिकम लिटिल वरीड, व्हाई दिस हरे कृष्ण महामंत्र कांस्टेंटली इन माय हार्ट, इट इज कांस्टेंटली प्लेइंग इन माय माइंड। सो ही बिकम लिटिल अफ्रेड, देयर इज सम, these Hare Krishna must have some, some drugs in their prasadam. This is causing effect on my mind that I am chanting Hare Krishna. This Hare Krishna mind, Mahamantra is there in my mind. He went to a psychiatrist who gave him some pills, थोड़ा दवाई वाई दिया, कुछ काम ही नहीं करा उसने। हरे कृष्ण वहाँ चले जा रहा है। वो devotees के पास गया. He went to the devotees and devotees started laughing. And devotees told him, this is the side effect of eating too much prasadam. बहुत ज्यादा प्रसाद पाते हो तो उसका साइड इफेक्ट। सो प्रसाद इज वेरी इम्पोर्टेंट। यू कैन whoever you want के भाई वो भक्त बन जाए, उसको प्रसाद खिलाइए। अपने प्रसाद जो है वो अंदर से क्या करता है, हमारा शुद्धिकरण करता है। So coming to temple at the time of prasadam is also very 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 fine. 3 times yes, you can come 3 times. You are most welcome. आप 4 टाइम भी आ सकते हैं। आप सुबह 4:30 भी आएंगे तो भी हम आपको प्रसाद दे सकते हैं। मंगला आरती स्वीट्स हम ऑफर मंगला आरती स्वीट्स। सुबह हम आपको बर्फी पेड़े वगैरह खिला सकते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट में हम 6 आइटम ऑफर करते हैं, 6 आइटम वी ऑफर टू द deities, 5 or 6. In the afternoon you all know what we offer. And in night generally we have milk and cake. So if you are ready, you are most welcome. Okay, so temple provides us all these facilities. Like first and foremost is association of the devotees. Which, how much time do we spend when we come to temple? In the whole week. एक हफ्ते में कितने घंटे होते हैं? 24 हफ्ते में 44/7 24 into 7 लगभग 168, 168. And how much we spend in the temple out of 168? 4 घंटे 2 hours 2-3 कुछ सेवा के लिए आते हैं तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। Otherwise most of the time we are in
at our home with our gadgets, with our comfortable situation, where nobody is watching us. कोई हमें देखने, हम जो चाहे मर्जी कर सकते हैं. Right? So similarly, you know, when we come to temple, naturally we feel inclined to chant more. Naturally we feel inclined to serve more. हाँ, अंदर से आता है कि कुछ सेवा कर लेता हूँ. लेकिन अभी माता जी आती सेवा के लिए, प्रभु जी मेरे को पिछले बोला कि मैं वो साफ करूंगा. सवा हमने पहले कर लिया, पर हमारा बात चल रहा था कि इसको पेंट करेंगे. अच्छा हमने नहीं करा पेंट, अभी बहुत साफ निकला है. फ्रंट साफ हो जाता क्रैशर से ही तो clean हो Pressure से जाता साफ है। हो जाता है. अभी बाकी दीवारें बची हैं. ये नेचुरल कलर सबसे बेस्ट ही है. हाँ. So naturally we feel inclined to serve. Naturally we feel inclined to chant more. आरती में जाता हूँ, वहाँ के दर्शन करता हूँ. Because this environment is like that. This environment is conducive for devotional service. So we can come to temple often, जितना हम आ सके. It is more or less ये ऐसा है बिल्कुल जैसे हम अपनी spiritual batteries charge करते हैं. देखिए बुरा मत मानिएगा, please don't mind when I say this. Most of the time when we chant at home, you know, we are occupied while chanting. You know, we are doing other tasks also. अभी मैं नहीं जानता हूँ आपका घर कहाँ है. मैं कभी गया नहीं आपके घर, मैंने कभी आपको आपके घर पे नहीं देखा है. But still it happens. क्योंकि जब घर पे कर रहे होते हैं तो हमें सामने वो चीजें नजर आ रही होती है. ये मुंह में हाथ डाल रहा है, इसको हाथ निकालो, माला करते हुए उसे मुंह से हाथ बाहर निकालो, उसको करना दिया होता है ना. ये चीज यहाँ पड़ी है, वो चीज यहाँ पड़ी है, हमें कुछ याद आता है. Even it happens to us also. हमारे साथ भी होता है, तभी मैं आपको बता पा रहा हूँ. नहीं, मंदिर में अच्छा दिल लगता है, कीर्तन करने में भी बहुत अच्छा लगता है. घर में कीर्तन भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता. So even we as temple devotees, we have to go to some other temple, go out of our you know service door. जैसे रात को कई बार ऐसे बाथरूम से नजर आ रहा था, गेट खुला रहेगा, चलो जाओ कर गेट बंद करके, या कुछ और नजर आ रहा था, टेबल पे अभी कुछ पड़ा है, वो खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा. तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आनी है. माला छूटती है फिर, या माला में ध्यान नहीं जाता है. We forget the task at our hand. So similarly, when we come to temple, it is like charging our spiritual batteries. है ना? आप ये महसूस भी करें in the जब हम मंदिर आते हैं ना, तो हमारी माला अच्छी होती है. मंदिर में माला अच्छी होती है. घर पे जो होती है वो मतलब उतना अच्छा नहीं हो पाता है. That is not with that much quality, but in temple it is more qualitative. घर वाली तो ड्यूटी के साथ होती है, इधर वाली प्यार से होती है. Yes. मतलब इधर वाली प्यार से करनी है, घर वाली भी प्यार से होने लग जाए. So और what we can do के means मैं क्लास के एंड में बताऊंगा ये चीज. I have a surprise for you all. So मेरे को याद दिला देना ना जब अगर क्लास करूँगा मेरे को कुछ अनाउंसमेंट करना. सरप्राइज. No surprise. सरप्राइज अनाउंसमेंट. So yes, so coming to temple is like charging our spiritual batteries. हमें भक्तों का संग मिलता है. And we learn from these devotees also. Look, you know, association of devotees, जो भक्तों का संग है बहुत जरूरी है भक्ति करने के लिए, है ना. हम उनको देखकर इंस्पिरेशन लेते हैं. अभी देखिए मान लीजिए आप 2 माला करते हैं, आप 4 माला करते हैं, आप किसी भी लेवल पर है ना, और जो क्लास लेते हैं या आपको पता लगे कि दिस प्रोजेक्ट आर स्टार्टिंग डूइंग 8 राउंड्स, आप सोचोगे यार आया तो ये मेरे साथ ही था, मैं 2 पे रह गया, ये 4 पे. मैं आपको अपना आई टेल यू अबाउट माय सेल्फ. I went to temple in September 2011 till February 2012. 6 months मैंने कोई माला ही नहीं करा. मुझे क्या लगता था ये इस्कॉन वाले भारत की एकता के लिए खतरा है. These ISKCON people, they are threat to the unity of India because they are pro Hindus. ये सबको हिंदू बनाना चाहते हैं. मुझे ऐसा लगता है जब मैं था कॉलेज से जस्ट बाहर निकला था. तो what I tried to do that I will correct them. मैं इनको ठीक करूंगा. और मैं 6 महीने सिर्फ आर्ग्यूमेंट करता था. कोई माला नहीं करता, सिर्फ प्रसाद पाता था बढ़िया से और सिर्फ आर्ग्यूमेंट करता था. वो जो भी बोलते थे whatever they say, I just counter argument. फिर क्या हुआ 6 महीने बाद, after 6 months, one of the very senior devotee, he came to give class, our temple president, and the first thing he asked all the boys that what is your name, आपका नाम क्या है और आप कितनी माला करते हो. So you know I get nervous, I get very afraid. मैं तो माला ही नहीं करता था 6 महीने से, आपका कोई माला ही नहीं करता था. I was not doing any round and I was in the front. मैं बिल्कुल ऐसे तमालपुर बैठा था. It was like this.
उनके बिल्कुल आगे बैठा था। उन्होंने यहाँ से शुरू किया, बहुत सारे लोग थे, 30-40 होंगे, तो यहाँ से शुरू किया। तो बिल्कुल ही डर गया, मैं क्या बोलूँगा। सो फिर उन्होंने कहा नो, विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम हियर, विल स्टार्ट फ्रॉम द बैक। सो आई वाज लिसनिंग, अब मैं सबसे आगे बैठा था और मैं सुना था, लोग बोल रहे मेरा नाम सुरेश है, मैं एक माला करता हूँ, मेरा नाम सर एक किसी ने बोला, सबसे मिनिमम 2 बोला था, कोई 2 कोई 4, कोई somebody said 2, somebody said 4. So I was listening all this. लोग बोल रहे हैं कि कुछ 2 करता 4 करता, मेरे ऐसा तो कोई है ही नहीं, कोई जो 0 करता हो। I was too afraid. तो जैसी मेरी बारी आई मैंने बोल दिया मेरा नाम राजेंद्र, 2 माला करता। That was the first day I start chanting. हरि कृष्ण मान करना शुरू किया फरवरी में, 6 महीने बाद। So moral of the story is that we get encouraged by seeing others. जब हमें पता लगता है कि this person is doing this much, वो भी ऐसे सेवा करता है, तो why cannot I do this service? I can also excel in this. If this person is becoming more dear to Krishna, why cannot I do this? So temple provides us this facility, and temple provides us a right environment where we can leave our headaches, where leave our tension at the doorstep. है ना? अभी देखिए लोग मंदिर क्यों आते हैं? थोड़ा शांति के लिए आते हैं। घर पे बाहर कहीं पर हमेशा कुछ ना कुछ नैगिंग चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अगर टेंपल आते हैं थोड़ा सुकून मिलता है, थोड़ा सांस लेने का वो मिलता है कि हाँ, so that tranquil situation, that tranquility is given by temple. That's why it is very, very, very necessary to come to temple. And plus temple is a training ground, a educational institute, जहाँ हम क्या कर सकते हैं, जहाँ हम भगवान की भक्ति कैसे करनी है वो सीख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टेम्पल जो हम जाते हैं, देखिए इस्कॉन टेम्पल इसलिए अलग है, अभी हमारे मंदिर का ऐसा नाम नहीं है, सिर्फ मंदिर का नाम है श्री शिलालकारी शिव मंदिर, वो भी शायद मैंने बोला क्या बोलते हैं। मैं जिस मंदिर से जुड़ा था, द टेम्पल आई वॉज कनेक्टेड टू, इट वॉज इन दिल्ली, इन द एरिया पंजाईबाग। वैसे लोग इस्कॉन पंजाईबाग बोलते थे। बहुत वाइब्रेंट है, बहुत छोटा मंदिर है, इतना ही होगा जो लगभग 2500 लोग जुड़े हुए हैं उस मंदिर से, 2500। और on any festival they don't have space to accommodate all the people. They always at each festival they hire a big lawn, मंदिर के पास में ही है, उसमें 3000 लोग तक आ जाते हैं। मतलब आरती वगैरह सब मंदिर में होते हैं, लोग बाहर भी खड़े रहते हैं, सबको इंतजार करते रहते हैं, दर्शन करके आ जाऊंगा एक बार, मैं आरती में देखूंगा। प्रसाद सबका 2-2,500-3,000 लोगों का वो लोन में होता है, 1-1.5 किलोमीटर दूर है, सब लोग पैदल जाते हैं, तो वहीं से अपने अपने घर जाते हैं। So that small temple also is a very vibrant temple. तो उसका नाम, उस मंदिर का नाम है, the name of that temple is श्रीशा राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम मंदिर टेम्पल एंड वैदिक एजुकेशन सेंटर। क्या दिया जाता है? वैदिक एजुकेशन भी दी जाती है। So this is the purpose of temple. It is not just to ठीक है, deities हैं, उनकी सेवा होती है, हमें मंदिर आना चाहिए दर्शन करने, we must come to temple, take darshan, do around, but it is like a educational institute also, जहाँ हम क्या कर सकें, भक्ति करना सीख सकें। And it is duty of those who are seniors. It's not the duty of only those who are living here. मंदिर ब्रह्मचारी उन्हीं का ड्यूटी है कि हम वो करें, क्लास दें। Prabhupada has in Chaitanya Charitamrita it is said, यारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु है तारे देश। कि जिसको भी आप मिलो उसको आप क्या करिए, कृष्ण के बारे में बताइए, आप गुरु बनिए, अमार आज्ञा गुरु है तारे देश। आप क्या करिए, आप गुरु बनिए। गुरु बनना मीन्स whatever you know, share that knowledge to others. उनके साथ आप क्या करिए, आप शेयर करिए। हमें हो सकता है आप कहें कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता, आई डोंट नो एनीथिंग, आई एम जस्ट अभी तो आना शुरू हूँ। यू मे बी नोइंग समथिंग, आप किसी को कुछ तो बता सकते हैं, कुछ नहीं बता सकते उसको मंदिर तो ला सकते हैं, मंदिर ला सकते उसको प्रसाद तो खिला सकते हैं। सो डू योर पार्ट इन स्प्रेड। ओपन भगवद गीता 18.69, आई ओपन हियर। 18 चैप्टर 18.69।
Nacha Pashma. 68 आ जाइए 68 69 will read both 68 and 69 माता जी I will get. ये आप घुमाते ही रह जाओगे 18 अध्याय कौन सा श्लोक? 18 आखिरी अध्याय 69 68 69 आप वो क्रोम से क्यों नहीं खोल लेते हो? यही होगा। I mean next class में क्या होंगे? इसमें वो इंटरनेट ही है क्या? मेरा मोबाइल कहाँ है? 60. ये रखो अपने पास। 68. 68 69 लीजिए। ये वाला ना य इंद्र परम हाँ ओके या इदम परमं गुह्यम् या परम परम गुह्यम्। दिखाइए मेरे को ये ले लीजिए। ये आपको हिंदी भी सीखनी पड़ेगी हिंदी में पढ़ने के लिए ना ये हिंदी वाले ये सीखनी पड़े गिनती हिंदी का गिनती करना सीखना चाहिए हम पढ़ने नहीं बाकी सीखना चाहिए। दस तक तो आ गए हैं। 10 तक तो आ गए। या इदम परमं गुह्यम् या इदं परम गुह्यम् मद्भक्तेषु अभिधास्यति मद्भक्तेषु भक्तिमयि परं कृत्वा भक्तिमयि परं कृत्वा माम् एव से असंशया माम् एव संशया। नेक्स्ट श्लोका नाचा तस्मान् मनुष्येषु शस्त्रु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमा कश्चिन् मे प्रियकृतमा भवति नाचा मे तस्मान् भक्ति नाचा मे तस्मान् अन्ये प्रियतरो भुवि अन्य प्रियतरो भुवि। Arjun, could you please read the translation and translate us the French translation into English or Hindi? दोनों ही? हाँ जी हिंदी या इंग्लिश कुछ भी बोल सकते हैं Celui qui enseigne les défauts de ce secret suprême obtient de nous servir avec une dévotion pure et à la fin il revient infailliblement जो सिखाता है मेरी जो डिवोटी जो मेरे Okay, but there are tasks. So you just read in French this shloka. फ्रेंच में बोलो हाँ जी फ्रेंच में बोलो They all need to मेरे कुछ लोगों को फ्रेंच आता है कुछ सीखना चाहते हैं Celui qui enseigne à mes dévots ce secret suprême obtient de me servir avec une dévotion pure et à la fin il revient infailliblement. One who explain जो परम गुह्यम ज्ञान है ये और लोगों को बताता है ना वो क्या बन जाता है उसके लिए डिवोशन सर्विस गारंटी है इट इज गारंटी एंड ही विल कम बैक टू दैट मींस कृष्ण टेलिंग वन हु डू प्रीचिंग है ना देखिए इन दिस कलयुग ना हम अकेले भक्ति नहीं कर सकते वी नीड एसोसिएशन मतलब आपने सुना होगा ना खरबूजे को देखिए खरबूजा रंग में रहता है रंगत से संगत से रंग So we need devotees. Otherwise, अगर हमारी संख्या ज्यादा नहीं होगी ना, जितनी भी से ज्यादा नहीं होगी, तो हमारे लिए अपने आप भक्ति करना मुश्किल हो जाएगा। हमें मंदिर अच्छा लगेगा जब बहुत सारे भक्त होंगे, बहुत ज्यादा कीर्तन होगा, सब डांस कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ प्रसाद होगा। So इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें खुद ही प्रचार करना पड़ेगा। हमें कुछ ना कुछ एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे। और नेक्स्ट श्लोक में कृष्णा क्या बोल रहे हैं? ऐसा करने से क्या होगा? माता जी कृष्ण माता जी पढ़ेंगे नेक्स्ट श्लोक 69 इस संसार में there is no servant in this world more dear to me than he, nor will there ever be one more dear. उससे ज्यादा प्रिय ना कोई है ना कोई हो सकता है जो क्या कर रहा है प्रचार कर रहा है वन हु इज गिविंग कृष्णा टू अदर्स देखिए भगवान खुद नहीं देते हैं किसी को खुद अपने आप से चल के नहीं जाते हैं ओनली अ डिवोटी कैन गिव कृष्णा टू अदर्स सो
हमें भी क्या, जब हम टेंपल में आते हैं तो हमें भी ये सर्विस, हमें भी ये अपॉर्चुनिटी प्रदान की गई, पर हमें भी क्या करना है, वी हैव टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव इट टू अदर्स ऑल्सो। स्पेशली अभी जब जन्माष्टमी आएगा, सो मेनी पीपल विल कम, है ना। मोस्टली देखिए, या अभी हम भी जाते रहे होंगे, जैसे मैं भी जब मंदिर जाता था ना, तो या तो हम देखने जाते हैं कैसे सजाया हुआ मंदिर, हाउ डेकोरेटेड इट इज, है ना, प्रसाद क्या मिल रहा है ना, कब होगा प्रसाद, है ना, अपना देख के हाँ बहुत बढ़िया करके आ जाते थे। और अभी मोस्टली लोग ऐसे ही आएंगे, बट वी कैन गिव देम अ चांस टू परफॉर्म डिवोशन। हम उनको क्या कर सकते हैं, हम करेंगे भी, है ना, उनको कोर्सेज के लिए एनरोल करेंगे, विल ट्राई टू एनरोल देम फॉर दीज क्लासेस, विल ट्राई टू एनरोल देम फॉर टेकिंग बुक्स, और हम या तो व्यवस्था अच्छी करके तो हम उनको प्रचार करने का प्रयास करें, सो दैट दे विल कम अगेन एंड अगेन। सो बाय डूइंग दिस वी कैन बिकम मोर डियर टू कृष्ण, एज कृष्ण मेंशन हिमसेल्फ। मैंने नहीं बोला, ये भगवान खुद बोला, इससे प्रिय मेरे को कोई और ना है ना कोई होगा। So this opportunity is also provided in temple, है ना। हमें एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, हमें शांति प्रोवाइड कर रहा है, एक साफ अच्छे, हमें कंडीसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है टेंपल, राइट। ओके, so now the question arises, when we come to temple there are priests in the temple। I'm not, अब देखिए, the ISKCON temple are very different from traditional temples। जनरली मंदिर में आप जब जाते रहे होंगे, the other temples that you may visit, you will see there is one priest who is mostly into, you know, oh, what do you bring, okay, just offer it to the deity and give it back, but here it is completely different। यहाँ थोड़ा अलग चीजों पर जोर दिया जाता है, प्रचार पे ज्यादा जोर दिया जाता है, या फिर सेवा पे ज्यादा जोर दिया जाता है। So one question that may arise in our mind, who can preach and why do we need a middleman? भाई भगवान, मैं मंदिर आता हूँ, मैं अपनी श्रद्धा से आता हूँ, I with my pure heart, with my pure intention I come to temple, here is Lord Krishna in front of me, I can directly contact him, why do I need a middleman? मुझे किसी की बात सुनने की जरूरत ही क्यों मंदिर में आके, मेरे को भगवद गीता भी है, लेकिन सही बोलते हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं। हाउ डू यू नो सही बोलते हैं? नहीं, हाउ डू यू नो? मैं तो नहीं कहता वो सही बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, सही नहीं है तो। लास्ट में अंदाज बोल रहा है, आपने गलती बोल रहा है। गुरु के बिना भगवान नहीं मिल सकता, बीच में गुरु सही चाहिए। ओके, सो हाउ डू यू नो? अब तक जो मैंने अभी जितनी भी क्लासेस ली है, मैंने ठीक बोला, व्हाट इज योर गारंटी? क्योंकि आपने जो पढ़ा वो गीता में से पढ़ा, गीता हमारे हाथ में, हम भी वही पढ़ रहे हैं, तो सही बोला आपने जो बोला। वेरी नाइस, इसी पॉइंट को मैं बार बार कहूँ दैट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो। देखिए, क्लास में आ रहे हैं हम, प्रभु जी ने फोन करा दिया, कल नहीं करा पाया मैं, सॉरी, या प्रभु जी ने मैसेज भेज दिया आ जाएंगे, ठीक है ना, प्रभु जी क्लास वो करेंगे, तैयारी करेंगे, वो सब करेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम जाके क्या करेंगे, वी जस्ट गो देयर एंड सिट डाउन, नो, इट इज नॉट लाइक दैट। हमने आज तक जो सुना है, आज जो आप सुन रहे हैं, व्हाटएवर यू आर लिसनिंग टुडे, इट इज अ टेस्ट ऑफ योर लिसनिंग, योर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। सपोज इफ आई स्टार्ट, मैं कुछ गलत बोलने लगता हूँ, हरे कृष्ण, मूर्ति में कृष्ण नहीं है, हर जगह है कृष्ण, वो आपके अंदर भी है, ये भी, मतलब कुछ भी कोई गलत फिलॉसफी बोलने लगता, तो आपको कैसे पता लगेगा? क्योंकि आपने इससे पहले भी कुछ सुन रखा है। यू में आस्क क्वेश्चन के, आज से पहले तो कभी ये नहीं बताया गया। That's why it is very 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 important to ask questions। सिर्फ सुन के नहीं बैठ जाना चाहिए, just listen, okay, हाँ प्रभु जी ने बोला तो ठीक ही होगा। No, it is not। If you read भगवद गीता also, आप में से कौन कहाँ पहुँच गया, एक बार हम पूछ ही लेते हैं, कहाँ पहुँचे हैं भगवद गीता पढ़ते पढ़ते? ज्यादा दूर नहीं पहुँचे। मैं पहले चैप्टर पे पहुंचने वाली हूँ। पहले चैप्टर में पहुँचने वाले हैं। शुरू कहाँ से किया था? इंट्रोडक्शन से। वेरी नाइस, यस माता जी। मैंने 1-2 अध्याय पढ़ा। 1-2 अध्याय, मतलब उसका जो अर्थ होता है ना, मतलब हमारे गुजराती लैंग्वेज में वही पढ़ा है, मैंने श्लोक नहीं पढ़ा। नॉट गुड। अभी छुट्टियां, अभी भी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? छुट्टियों में तो नहीं पढ़ा जाता है। छुट्टियों में नहीं पढ़ा जाता, ओके, इन द हॉलीडेज यू कैन नॉट। यस माता जी। इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है? हाँ, अभी तो वही चल रहा है। अभी वही चल रहा है। इंट्रोडक्शन इज द बिग वन, प्लीज कंटिन्यू। यस प्रभु जी, आप कहाँ तक पहुँचे?
how far you have gone in reading Bhagavad Gita? मैं तब वो बोल ही दिया। Generally, कितना दूर तक नहीं पहुंचे? नॉर्मल मैंने एक बार सब पूरा पढ़ा है, Okay, that's fine. सर पढ़ा, उसके बाद मैं दोबारा मैं चढ़ रहा हूँ। कहाँ पर जब दोबारा पहुंचते? पहला अध्याय में ही चल रहा हूँ। कौन से श्लोक नंबर पे? अच्छा मैं पहले किताब की तरह पढ़ा है, कम से कम 6 साल बाद पढ़ लिया, लेकिन अब जब आप समझाने लगे तो डीपली अब पढ़ा जा रहा है, क्योंकि श्लोकास के साथ समझ के पढ़ने में अभी भी still when you are reading you won't be able to understand everything. I request you, आप क्या करिए, आप पेंसिल लेकर अपने साथ जब पढ़ने बैठे तो पेंसिल रखिए अपने पास, किताब पर आप अंडरलाइन करिए उसको, उस पर कोई क्वेश्चन लिख लीजिए। मैं क्या करता था, मेरे पास जब भगवत गीता दिखाने हुए व्हाट आई यूज्ड टू डू, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आता था, सो आई जस्ट अंडरलाइन इट विद पेंसिल, अपने पेंसिल रखता था और पीछे पेज नंबर नोट कर लेता था, और नेक्स्ट टाइम जब मंदिर जाता था तो प्रोजी को पकड़ लेता था। प्रोजी, यू नो दीज आर माय क्वेश्चन, दीज आर माय लिस्ट ऑफ क्वेश्चन दैट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। आप अब यू नो वी मस्ट गिव द डिवोटीज टाइम ऑल्सो, ये नहीं कि प्रोजी अब मैं आया हूँ अब तो आपको बैठना ही पड़ेगा मेरे साथ, तो हमें कुछ मतलब उनसे बात करने के लिए मैं आ रहा हूँ, मुझे तो 15-20 मिनट आधा घंटा चाहिए आपका, मुझे ये प्रश्न है मेरे, तो क्या आप या क्लास के बाद जैसे भी मेक अरेंजमेंट, कुछ अरेंजमेंट हम बना लें ताकि हम उससे प्रश्न कर सकें। So when we read Shastra, that's why it is important to read Shastras. That's why it is important to listen classes, हम classes में आए सुने, ताकि हमें कोई धोखा ना दे पाए। Mostly spiritual life, you know, people think that it is bhakti is a matter of sentiments. No, bhakti is not just the matter of sentiments. Yes, sentiments are required in bhakti, but along with that, intelligence is also required. Bhakti is a matter of heart with intelligence. सिर्फ दिल का मामला नहीं है, दिल के साथ दिमाग भी लगाना है, ठीक है ना? ओके, सो अब नाउ हु कैन प्रीच, कौन क्लास ले सकता है? क्लास दे सकते हैं, क्लास दे सकते हैं, दे सकते हैं। बाबू जी क्या कर रहे हो आप यहाँ? है तो बहुत बड़े दूर की बात है। हमें पूरा पढ़ने ही नहीं आ रहा अभी, तो कैसे क्लास दे सकते हैं? यस, पॉसिबल ही नहीं है तो हमारे लिए, मेरे लिए तो नहीं है। आप सबको पूछ सकते हैं क्योंकि क्लास तो ये नहीं जो कुछ आप तो शुरू में देखिए हर एक के लिए ना जो उसका नेक्स्ट स्टेप होता है, whatever the next step for any person is the most difficult one. When you are not chanting, yeah, when you were not chanting one round was the most difficult thing. एक माला करना बहुत बड़ा, टाइम नहीं है यार, एक माला कहाँ से कर सकता हूँ, बहुत टाइम, बहुत बिजी हूँ मैं लाइफ में। फिर 2 राउंड करना मानोगे नहीं तुमको, है तुम पीछे पड़े रहते हो, ठीक है। ओके, chanting 2 round was difficult, but now we are progressing. So at every step, our next step is the most difficult one. लेकिन एक समय था जो 2 माला करना ही बहुत मुश्किल था, अभी हम आराम से कंफर्टेबली कर लेते हैं। एक समय था, there was a time when we could not read any shloka, ये गीता तो समझ ही नहीं आती हमें, वो बहुत इम्पॉसिबल ही था एक तरीके से हमारे लिए, बट नाउ वी कैन। सो दैट इज आवर नेक्स्ट स्टेप, प्रिपेयर योरसेल्फ दैट someday you will also, you know, what I have been doing here पिछले 6-7 हफ्ते से। मंदिर में कोई भी आता ना, वो हमारी माला पड़ी है, मैं उसको माला पकड़ाता हूँ, उसको समझाता हूँ कि माला कैसे करनी है। इस जन्माष्टमी में भी हम यही करेंगे। वन ऑफ आवर सर्विसेज विल बी, जो भी मंदिर आएगा लाइन में लगेगा, हम इंडिया में करते थे, वी यूज्ड टू डू दैट इन इंडिया। लाइन लंबी लगती है, 5-10 मिनट लग जाते हैं उसको दर्शन करने में पहुंचने के, उसके हाथ में माला पकड़ा देते हैं, उसके हाथ में कार्ड पकड़ा देते हैं, ओके प्रभु जी स्टार्ट चैंटिंग करेंगे। आप उसकी चिंता करें, मैंने 50 किलो का पार्सल मंगवा रखा है, बस आने वाला है, फिर तो हो जाएगा। ठीक है, उसमें 150 माला है। नहीं ये अच्छी चीज की आपने, क्योंकि 150 नहीं वो और भी सामान, धोती कुर्ता और भी सामान यहाँ कोई नहीं पहनता धोती, डोंट वरी, बहुत सारी चीजें आ रही और भी हम मंगवाते रहेंगे। कोई इंडिया जाएगा तो उससे भी मंगवा लेंगे। कैसे मंगाते प्रॉपर्टी पर्स कितने का? 50 किलो का, कुछ में कुछ भी मंगा सकते हैं, कोई कपड़ा ये वो 550 रुपये, इसको बाद बात करते हैं। Okay, so coming back to our point, yes, whatever you know,
we have to share it with others. ठीक है, we don't have to stop ourselves कि मैं नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता. आप देखिए प्रभुपाद जी ने किनको प्रचार करा? Those are all hippies. When Prabhupada preached, there were Matajis who don't know how to wear sari. What is blouse, what is petticoat, what is this, what is that. Prabhupada teach them everything. है ना, साड़ी कैसे पहननी है, जो भी चीजें होती हैं, है कि नहीं. मोस्टली लोगों की जिनकी इनिशिएशन हुई थी, इनिशिएशन तक भी वो सिगरेट वगैरह भी पीते थे, दारू लिकर वगैरह भी लेते थे. धीरे 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 प्रोपा जी ने उनको क्या करा, उनको सिखाया. लाइफ ही चेंज कर दी, पूरा लाइफ ही चेंज कर दिया. लाइफ ही चेंज करके भक्त बना दिया. Yes, so we have to do the same. This Krishna consciousness is like entering mafia. There is only one way. जैसे माफिया में होता है ना कि आप सिर्फ आ सकते हो, now you cannot leave because you know too much. ऐसे ही जब हम भक्ति करते हैं तो हम कृष्ण के रडार पे आ जाते हैं. We become visible on the radar of Krishna. Now Krishna has chosen us that you cannot leave. Now you are mine. भगवान हमें क्या करेंगे, जाने नहीं देंगे. कैसे ना कैसे, ये फैक्ट है. अगर कोई हो सकता है कि आपको दिखे कि कुछ क्लास में आना बंद हो गया, इधर उधर चला गया, ये हो गया, पहले माला करते हैं, बहुत अच्छे रोगी थे, और ऐसा होता है. ठीक है, मैं आपको एक इंडियन रेशियो बताता हूँ. इंडियन रेशियो generally we start with, because I was preaching to boys, so generally we start with some 40-50 boys in a batch. After 6 or 7 sessions, only 10 will remain. After 2 or 3 years, 6-7 सेशन के बाद 10 या 12 बचते थे. 2 साल 3 साल के बाद हार्डली में 5 या 6 बचते थे, जो 16 मतलब मारा करने लगते थे, सीरियस हो जाते थे, भक्ति पढ़ते थे. 5 साल 10 साल के बाद उन्हें हार्डली 1 या 2 रहता था. सो इट इज डिफिकल्ट, डोंट वरी, यू नो, इतना आसान नहीं है भगवत धाम जाना. बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन, मतलब भगवान चाहते हैं, और अगर कोई छूट भी जाता है, इधर उधर हो भी जाता है ना, वहां उसे घुमा फिरा कर लेकर आते हैं वापस, छोड़ते नहीं है भगवान उसको. यू नो, जैसे एक्चुअली दिस इज अ वेरी बिग टेंशन ऑफ कृष्णा टू ब्रिंग बैक ऑल हिज चिल्ड्रन बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो भी इधर उधर घूम रहे हैं संसार में. और हमें क्या करना है, हमें कृष्ण का मदद करना है उसमें. ठीक है जी. सो वी ऑल गेट टू नो इन टुडेज क्लास व्हाई वी नीड अ टेंपल. तो एक एक पॉइंट आप बता सकते हैं क्यों हमें मंदिर चाहिए. व्हाई डू वी नीड अ टेंपल. क्या आपने समझा, क्या आपको समझ आया? शांति होती है पहले. शांति, एक क्वाइट ट्रैंक्विल सिचुएशन, एक अच्छा एटमॉस्फेयर हमें देता है जहाँ हम अपनी टेंशंस को, वी कैन लीव आवर टेंशन एट आवर होम, एट आवर जॉब. यहाँ आकर हम शांत थोड़ा अपने मन को कर सकते हैं. ओके, वेरी नाइस. बहुत कुछ सीखने को मिलता है. दिस इज अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट? वैदिक एजुकेशन, जहाँ हमें हमारे आध्यात्म की नॉलेज हमें मिलती है. एजुकेशन, भाई सही एजुकेशन प्राप्त होती है. ओके, और टेंशन फ्री रहते थे, टेंशन काम फ्री की, घर की टेंशन नहीं रहती, बच्चों की. जितना आप आगे बढ़ेंगे ना और टेंशन आएगी. प्रभुपाद जी अपने एक लेक्चर में कहते हैं कि यशोदा, व्हाई कृष्णा चूज यशोदा माता एज हर मदर. और भी बहुत सारे भक्त थे, यशोदा को ही क्यों अपनी मम्मी स्वीकार किया उन्होंने? बिकॉज यशोदा परचेज टेंशन फॉर कृष्णा, शी टुक एंजाइटी फॉर कृष्णा. आप देखिए जो ब्रजवासी होते हैं उनका एक है, ईच एंड एवरी टास्क इज रिलेटेड टू कृष्णा. हर चीज पे वो क्या सोचते हैं, कृष्ण को वो देना है, इसके कहीं ये ना लग जाए, इसके कहीं वो ना लगे, लाला ठीक है कि नहीं. हर एक चीज वो कृष्ण को के बारे में. आप देखिए उन्होंने कितनी बार घर चेंज करा. पहले गोकुल में कृष्ण आए, थोड़ा टाइम बाद गोकुल से छोड़ दिया क्योंकि सो मेनी डीमंस वर कमिंग देयर इन गोकुल. फिर कहाँ जाते हैं, एक और जगह जाते हैं नीचे, फिर वृंदावन जाते हैं. और इवेंचुअली कृष्ण उनको छोड़ के भी चले गए. कितना टाइम कृष्ण रहे वृंदावन में? He just said around 11 years, 10.5 years in Vrindavan. Even when Krishna went back to Mathura or eventually to Dwarka, still they were always thinking of Krishna. So because they purchased anxiety for Krishna, and Krishna loved them so much. So yes, tension तो लेना पड़ेगा कृष्ण की. कृष्ण की है ना, उधर कुछ नहीं होता. It will take you out. Okay, Mataji, would you like to share something? Any point from today's class?